Hello everyone. So welcome back, and this is a new video where we'll be discussing about the agricultural seasons and agricultural crops of India. Now this video and following this video there will be several others where we'll be discussing about agricultural topics which are important with respect to UPSC prelims examination. So the topics will be covered based on what kind of questions that has been asked on the asked in the previous years. Now because agriculture syllabus is very vast, we cannot just go blindly. So we have chosen certain topics, or we have taken certain topics depending upon the previous year's questions related to agriculture that has been asked in the preliminary examination. So first, some basic topics that everybody should know. These topics are covered in geography textbooks also, NCERT textbooks. So first we will see what are the agricultural seasons, what are the crops which are grown in those seasons, and some details about the temperature requirement, or what kind of whether the crop is temperate crop or it is grown in tropical region or subtropical region, and what is the present production and what are the states which lead in the production of that particular crop. So with some statistics, right? So first we'll see the agricultural seasons, then we will go on to each crop, some cereals, some important pulses, millets, cash crops, etc. Okay, and the content is not very deep because the questions in the preliminary examination will mostly be based on the NCERT content. So I'm not going too deep in the package and practice and all. I will just focus on what is given in the NCERT and adding on some statistics, right? So first we'll see what are the agricultural seasons. So there are three agricultural seasons in India: Kharif, Rabi and Zaid. So Kharif, it starts from July and it extends till November. Then we have Rabi, it begins at the end of October or at the beginning of November and it continues till March, April. Then from April, May, June, hardly 3 or 3.5 months, which is Zaid. So Zaid is the shortest season. Okay, only short duration crops, especially with irrigation facilities, those crops which are of very short duration, and along with, if you have irrigation facility, then only you can grow them. So there are three agricultural seasons. That is the most basic thing. Now we'll see each season one by one. So Kharif crops or monsoon crops are sown with the beginning of first rains in July during the southwest monsoon season in India. So southwest monsoon की बात कर रहा है. At the beginning of the monsoon, field will be prepared and these crops will be ready for sowing. The Kharif season lasts from June to October, or if the crop is delayed or sowing delay होता है तो it can extend up to first or second week of November. ये depend करता है. See, sometimes the onset of monsoon is delayed. तब क्या करोगे? So there is also a term called contingency cropping. So especially in the areas where agriculture is completely dependent upon rainfall, जहाँ पर irrigation facility नहीं है, वहाँ पर completely rain fed area है, तो वहाँ पर अगर delay हो जाता है monsoon, so you can go for contingency cropping. So contingency cropping में क्या होता है, अगर monsoon बहुत ज़्यादा delay हो गया और तुम्हारा suppose तुम्हारे crop को 110 से 115 दिन चाहिए, okay, the variety which you are sowing, it needs 110 to 115 days to fully mature. Okay, from sowing to harvest उसको इतना टाइम चाहिए. Now अभी उतना टाइम नहीं है, सपोज 2 हफ्ते डिले हो गया रेनफॉल, यानी 15 दिन कम हो गए इसमें से. सो अब कितना बचा? 95 डेज. सो 95 डेज में तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगा. सो अब क्या करेंगे हम लोग? यू कैन गो फॉर एनी क्रॉप विच इज ऑफ वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन. जोअर, बाजरा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा सकते हो वहां पर. ओके, दिस इज वन. कंटिजेंसी प्लानिंग में बहुत सारे
स्टेप्स फॉलो कर सकते हो. नाउ इफ बिकॉज ऑफ अर्ली विड्रॉल और लेट ऑनसेट, अगर तुम्हारा जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम है, सो यू कैन गो फॉर गैप फिलिंग. सो बहुत सारे इसमें टेक्निक्स हैं. वन ऑफ द टेक्निक्स यू कैन गो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप. इंस्टेड ऑफ योर मेन क्रॉप तुम कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा सकते हो. स्पेशली रेनफेड एरियाज में कंटिजेंसी क्रॉपिंग कर सकते हैं. सो पहले खरीफ सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग. साउथ वेस्ट मानसून पे उसके साथ साथ शुरू होता है. इट स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. इट एक्सटेंड्स टिल अक्टूबर. नाउ खरीफ मीन्स ऑटम इन अरेबिक. तो उसका जो द टर्म है वो कहां से ऑरिजिनेट हुआ है. सिंस दिस पीरियड कोइंसाइड्स विद द बिगिनिंग ऑफ ऑटम और विंटर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट इज कॉल्ड खरीफ पीरियड. खरीफ क्रॉप्स आर डिपेंडेंट अपॉन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रेन वाटर एज वेल एज इट्स टाइमिंग. तो ज्यादा पानी चाहिए इन क्रॉप्स को. नाउ एग्जांपल्स देखो, एग्जाम में क्या है ना, द क्वेश्चन कैन बी वेरी सिंपल. 4-5 क्रॉप्स दे देंगे तुमको. दे विल गिव यू 4 or 5 क्रॉप्स. ओके, 1 2 3 4 5 दे देंगे, 5 क्रॉप्स के नाम. विच ऑफ दीज इज नॉट ए खरीफ क्रॉप और विच ऑफ दिस इज नॉट ए रबी क्रॉप बोल देंगे. सो 1 and 2, 2 and 3, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन दे सकते हैं. अगर तुमको क्लियरली पता नहीं है कौन सा क्रॉप रबी वाला है कौन सा खरीफ वाला है, तुम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे. सो एटलीस्ट रिमेंबर द इंपॉर्टेंट खरीफ, रबी एंड ज़ैद क्रॉप्स. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स तुमको एटलीस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि प्रोमिनेंट क्रॉप्स ही देगा तुमको एग्जाम में भी. ऐसा कोई छुटकू मुटका सा क्रॉप नहीं देगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है. दे विल गिव यू प्रोमिनेंट क्रॉप्स, जो इंपॉर्टेंट है वही देगा. एंड एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई विच वन इज खरीफ सीजन क्रॉप, विच वन इज रबी सीजन क्रॉप. ये पता होना चाहिए. नाउ खरीफ सीजन, रबी सीजन, ज़ैद, ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है, सी क्रॉप्स को डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्रॉप्स, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो. बिकॉज क्रॉप्स आर सेंसिटिव टू लाइट कंडीशंस. उनको कितना लाइट मिल रहा है, फोटो सेंसिटिव क्रॉप्स बोलते हैं. फोटो पीरियोडिज्म, इट इज ए फिनोमिना इन प्लांट्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग. अगर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट जो उनका होता है वो अगर कंप्लीट नहीं होगा तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा. देन देर इज ऑल्सो थर्मो ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर द क्रॉप्स. एक पर्टिकुलर थर्मो पीरियड भी मिलना चाहिए. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्रॉप के लिए नेसेसरी होता है फॉर फ्लावरिंग. सो ईच क्रॉप या ईच प्लांट, एवरी प्लांट शुड कंप्लीट देयर थर्मो पीरियड एंड फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट. यानी उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का जरूरत होता है, वो टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए. उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर लाइट कंडीशंस उसको चाहिए होते हैं, वो भी मिलना चाहिए. जब ये दोनों थर्मो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट एंड फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट दोनों जब कंप्लीट होते हैं तभी वो फ्लावरिंग पे आता है. सो एवरी क्रॉप हैज डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स एंड डिफरेंट लाइट रिक्वायरमेंट्स. सो बेस्ड ऑन ऑल दोज फैक्टर्स हम अलग अलग सीजन में उनको ग्रो करते हैं. क्योंकि अगर तुम खरीफ क्रॉप को लेके अगर रबी में ग्रो करोगे तो वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है. सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दोज थिंग्स सीजनल, क्योंकि उस सीजन में वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है, इसलिए हम लोग वो क्रॉप को उधर ही ग्रो करते हैं, उस सीजन में ही ग्रो करते हैं. राइट. सो एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स: पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, cotton, sugarcane, green gram, red gram, black gram, tea, coffee, chilies, turmeric, rubber. These are all examples. Now, अभी पैडी है. जैसे पैडी नॉर्थ इंडिया में खरीफ सीजन में ही ग्रो करते हैं. नॉर्थ इंडिया में पैडी जुलाई में सो होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट और सेकंड वीक जुलाई में सो करते हो पैडी को. पर देर आर प्लेसेस इन इंडिया, सपोज साउथ इंडिया में अगर तुम जाओगे तो डेल्टाइक रीजन, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, वहां पर जाओगे तो पैडी इज ग्रोन इन ऑल 3 सीजन्स. रबी में भी पैडी ग्रो करते हैं, खरीफ में भी करते हैं, ज़ैद में भी करते हैं. यू कैन ग्रो पैडी इन ऑल द 3 सीजन्स कंसेक्यूटिवली. लगातार तुम पैडी ग्रो कर सकते हो. अब यानी खरीफ में भी ग्रो कर रहा है, रबी में भी ग्रो कर रहा है, ज़ैद में भी ग्रो कर रहा है.
तो पैडी को तुम अगर रबी में ग्रो कर रहे हो साउथ इंडिया में, तो पैडी तो रबी क्रॉप हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, दैट इज नॉट द केस। अगर पैडी को रबी सीजन में साउथ इंडिया में ग्रो कर रहे हैं तो उसको सर पैडी तो फिर रबी क्रॉप भी बोल सकते हैं ना? ऐसा नहीं होता है। पैडी इज ए खरीफ क्रॉप, उसका कुछ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। ओके, वो नॉर्थ इंडिया में सिर्फ खरीफ सीजन में मिलता है। रबी सीजन में टेम्परेचर्स बहुत लो हो जाते हैं, वहां पर तुम पैडी ग्रो नहीं कर सकते हो। वेराज इन साउथ इंडिया, इन डेल्टा रीजन्स, क्योंकि ओशियनिक क्लाइमेट है, टेम्परेचर्स कभी भी बहुत लो नहीं होते हैं। इफ वाटर अवेलेबिलिटी इज देयर, यू कैन ग्रो पैडी इन ऑल द 3 सीजन्स। बट दैट डजंट मीन दैट पैडी इज द रबी क्रॉप, बिकॉज साउथ में रबी सीजन में ग्रो कर रहे हैं सर, तो पैडी रबी नहीं होता। ठीक है, पैडी, मेज कैन बी ग्रोन इन ऑल द 3 सीजन्स इफ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स आर अवेलेबल। इसको भी तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हो, राइट? सो पैडी, मेज, जोर, बाजरा। अभी वीट है, देखो वीट को तुम सपोज मध्य प्रदेश तक ग्रो कर सकते हो। मध्य प्रदेश के नीचे जाओगे तो ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज द टेम्परेचर्स आर हाई। जो पेनिनसुलर इंडिया है, मध्य प्रदेश के नीचे, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर तुम वीट ग्रो नहीं कर सकते। रबी सीजन में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। सो एवरी क्रॉप हैज अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, मेनली टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं। उसी के बेसिस में हम लोगों ने डिफरेंट सीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स को डिवाइड किया। सो एटलीस्ट रिमेंबर, ये मेन क्रॉप्स याद रख लो कि कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं। सिंपल क्वेश्चन देगा, गलत करके आ जाओगे, तो ऐसे मिस्टेक्स मत करना। डिफिकल्ट क्वेश्चंस में तो होगा ही होगा, सिंपल क्वेश्चंस को छोड़ना मत। देन रबी सीजन, दिस इज द विंटर सीजन, सेकंड सीजन है हमारा। तो रबी क्रॉप्स आर ग्रोन अराउंड, they are sown around mid-November after the monsoon rains are over and harvesting begins in April May। तो सोइंग कब होता है? नवंबर, अक्टूबर नवंबर में सो होता है एंड अप्रैल एंड तक हार्वेस्टिंग हो जाता है। सो रबी सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर नवंबर एंड एंड्स बाय अप्रैल एंड तक वो खत्म हो जाता है रबी सीजन। द क्रॉप्स आर ग्रोन आइदर विथ रेन वाटर दैट हैज परकुलेटेड इनटू द ग्राउंड। व्हाट डज इट मीन? यानी वाटर, रेन मिला तुमको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है तुमको, तुम जो भी, ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो तुमको जनवरी उस टाइम पे आता है, वो रेनफॉल, वो रेन से वाटर मिल गया, वो अच्छा है, दैट इज मेनली बेनिफिशियल फॉर व्हीट क्रॉप। अदरवाइज जो सितंबर अक्टूबर में उस टाइम पे जब मानसून रिट्रीट कर रहा है, साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट कर रहा है, उस टाइम पे जो बारिश गिरा है वो सॉइल में अभी भी है, स्टिल the soil holds that moisture। if that moisture is available in the soil, जो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश गिरा था वो सॉइल में अभी भी है, that is enough to sow the crop। इरिगेशन अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इरिगेशन नहीं है उस केस की बात कर रहे हैं हम लोग। सो क्रॉप्स आर ग्रोन आइदर विथ रेन वाटर दैट हैज percolated into the ground or with irrigation। if irrigation is available you can grow crops throughout the year। irrigation जहां पर अवेलेबल नहीं है, only 33% of the land in India is irrigated, 33 to 35%। और अगर मैक्सिमम हम लोग ये सारे रिवर्स को इंटरलिंक कर भी देते हैं तो मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 50%। पर बाकी एरिया क्या है? रेनफेड एरिया है, वहां पर भी। सो वी हैव टू कंसिडर बोथ। दे ऑल्सो रिक्वायर कोल्ड वेदर एंड लेस वाटर कंपेयर टू खरीफ क्रॉप्स। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज लो, इनका टेम्परेचर लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, इसलिए नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ग्रो किया जा सकता है, दैट टू इन विंटर सीजन। क्योंकि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स समर में टेम्परेचर कैन गो अप टू 46-48 डिग्रीज, विंटर में लो हो जाता है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। सो दे आर ग्रोन इन कोल्ड सीजन और रबी सीजन। सो एग्जांपल्स क्या है रबी क्रॉप्स के? व्हीट, चिकपी चना, मस्टर्ड, बार्ले, ओट्स, सेसामे, पीस, लिंसीड, गार्लिक, क्यूमिन, कोरिएंडर। एटलीस्ट जो तुम्हारे मेन क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ले, ओट्स, सेसामे, लिंसीड, ये याद रख लो। एटलीस्ट जो तुम्हारे मेन क्रॉप्स हैं वो गलत मत करके आना। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, वहां पर गलत हो जाएगा तो फिर बाद में आके पछताओगे। ओके, द टर्म रबी इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड स्प्रिंग विच इज यूज्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेयर इट इज द स्प्रिंग हार्वेस्ट, वेयर इट इज द स्प्रिंग हार्वेस्ट ऑल्सो नोन एज द स्प्रिंग। जो तुम विंटर में डाल रहे हो, इट इज हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग। सो अप्रैल में हार्वेस्ट कर रहे हो, उसी के बेसिस पे नाम आया है। द लास्ट सीजन इज लास्ट एंड शॉर्टेस्ट सीजन जो रबी और खरीफ के बीच में आता है, दैट इज ज़ैद। सो शॉर्टेस्ट मई, जून,
अप्रैल एंड से अप्रैल मई जून और जुलाई के स्टार्टिंग तक मैक्सिमम 3 मंथ्स का शॉर्ट ड्यूरेशन मिलता है अगर तुम्हारे पास इरिगेशन है, बिकॉज उस टाइम पे बारिश नहीं गिरता है. यू विल नॉट गेट एनी रेनफॉल ड्यूरिंग अप्रैल मई. जून में तो स्टार्टिंग में सिर्फ केरला उस टाइम पे आता है, लेकिन बाकी इंडिया में तो उस टाइम पे बारिश नहीं गिरता है. सो इट इज अ वेरी शॉर्टेस्ट पीरियड एंड ओनली यू कैन ग्रो क्रॉप्स इफ यू हैव सप्लीमेंटल इरिगेशन. अगर इरिगेशन अवेलेबल है तभी. In the Indian subcontinent, the crops are grown on irrigated lands which do not have to wait for monsoon. Especially irrigated lands में ही होता है. In the short duration between Rabi and Kharif crop season, mainly from March to June. So अगर तुम्हारा मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट हो गया तो immediately you can sow. So मार्च के एंड से जून के स्टार्टिंग तक तुम ज़ैद क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो. ज़ैद क्रॉप्स रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर फॉर मेजर ग्रोथ पीरियड and long day length for flowering. The main produce are seasonal fruits and vegetables like watermelon, cucumber, muskmelon, sunflower, bitter gourd, pumpkin, ridge gourd, etc. Mainly cucurbits. Okay, fruits and vegetables are mainly grown. So that was about Zaid season. ये बस तुमको सीजन्स कौन से हैं, और ये मतलब नहीं है कि अगर कोई क्रॉप रबी सीजन में ग्रो हो रहा है, कोई खरीफ क्रॉप हमने जैसे एग्जांपल मैंने तुमको दिया मेज का, राइस का. सो इफ राइस इज ग्रोन इन साउथ इंडिया इन रबी सीजन, दैट डजंट मीन इट बिकम्स रबी क्रॉप. नो, एवरी क्रॉप हैज सर्टेन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट which encompasses thermoperiodic requirement and photoperiodic requirement and rain and water also. precipitation भी चाहिए, precipitation. So ये क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स जिस सीजन में फुलफिल हो रहे हैं उस क्रॉप को उस सीजन में डाला गया है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. सो फर्स्ट वी विल डील विथ सीरियल्स. हम लोग सीरियल्स देखेंगे, मेन सीरियल्स. देन वी विल गो टू पल्सेस, देन मिलेट्स एंड ऑल. ओके. सो राइस एंड wheat are the major staple crops in India. तो फर्स्ट विल सी राइस. और ये जो राइस का जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, ये एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट सिलेबस से नहीं है. दिस इज वेरी सुपरफिशियल एंड इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी. क्योंकि तुमको अगर क्वेश्चंस आ रहा है तो वो एनसीईआरटी के बेसिस में आएगा, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. ओके. सो इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, बिकॉज राइस ऊपर से नीचे सारे खाते हैं. आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना. ओके. India's rice production is estimated at a record 118.4 million tons in 2019-20. So ये लेटेस्ट डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे से लिया है. सो यू कैन रिलाई ऑन दिस. इट इज ए खरीफ क्रॉप. ओके. सो राइस इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर विच इज अबाउट 25 एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबाउ 100 सेंटीमीटर. तो 100 सेंटीमीटर अगर रेनफेड कंडीशन है तो इरिगेशन चाहिए मेनली. इफ इट इज नॉट इरिगेटेड तो एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोस विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन. जहां पर उतना बारिश नहीं होता है, इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर कल्टिवेटिंग राइस. नाउ राइस जो कल्टिवेशन है मेनली लोलैंड राइस है, एक अपलैंड राइस है. दो तरह के मेन आ रहे हैं. सो अपलैंड राइस का मतलब है ग्रोइंग ऑफ राइस इन दोज एरियाज विच आर नॉट फ्लडेड. जहां पर सीजनल फ्लडिंग होता है वहां पर अगर तुम ग्रो कर रहे हो तो उसको लोलैंड राइस बोलते हैं. अब पहाड़ों पे कर रहे हो, मैं टेरेसेस बना के राइस कल्टिवेट कर रहा हूं तो दैट इज अपलैंड राइस. ओके. नाउ ये तो डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर ग्रोइंग एलिवेशन के बेसिस में. नाउ यू हैव you can again classify the cultivation depending upon whether the rice is the seeds are directly sown or whether the crop is transplanted. तो transplanted rice है वो एक तरह का cultivation है where you will grow rice in the nursery for up to 1 month. उसके बाद तुम उसको transplant करते हो, which is commonly practiced. Direct seeded rice is also practiced. Direct seeded rice में क्या, तुम गेहूं की तरह डायरेक्टली सो करते हो. पहले नर्सरी में सो करके फिर उसको पडलिंग करने के बाद ट्रांसप्लांट, वो सब नहीं होता है, डायरेक्टली सो कर सकते हैं. द प्रॉब्लम विद डायरेक्ट सीडेड राइस इज
जहां पे ट्रांसप्लांट कर रहे हो वहां पर क्या होता है, पहले तुम फील्ड को ना खड़े पानी में, यू विल प्लाउ द फील्ड इन स्टैंडिंग वाटर विच इज कॉल्ड पडलिंग. पडलिंग से क्या होता है, ए सेमी impermeable layer is formed which will prevent the loss of water percolation. क्योंकि अगर तुम नॉर्मल ग्राउंड में पानी डालोगे तो इमीडिएटली नीचे चला जाएगा, इट विल परकुलेट. बट जब तुमने एक सेमी इम्परमिएबल लेयर बना दिया है, बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली इम्परमिएबल, थोड़ा थोड़ा पानी तो लॉस होगा, लेकिन पडलिंग से क्या होता है, एक तरह से सेमी इम्परमिएबल लेयर बन जाता है. यानी पानी डालोगे तो इमीडिएटली पूरा पानी नहीं जाएगा, इट विल परकुलेट बट वेरी स्लोली. सो पडलिंग डिस्ट्रॉयज द सॉइल स्ट्रक्चर को पूरा डिस्ट्रॉय करके पेस्ट जैसा बना देता है, बट वाटर विल स्टैंड इन दैट प्लॉट. अब वहां पर क्या होगा, बिकॉज वाटर फ्लडेड कंडीशन में तुम ग्रो कर रहे हो, ट्रांसप्लांट कर रहे हो, एनारोबिक कंडीशंस है वहां पर. अंडर एनारोबिक कंडीशंस वीड्स ग्रो नहीं होते हैं इजीली. ओके, फॉर प्लांट टू ग्रो इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन. रूट का जो रीजन है वहां पर एरेटेड कंडीशंस होने चाहिए, बट फ्लडेड कंडीशन में पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, वहां पर क्या होगा, वीड्स ग्रो नहीं करते हैं. तो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स जो तुमको इकोनॉमिक लॉस देते हैं. दे विल टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल, तुम्हारे क्रॉप के साथ कंपीट करके तुमको न्यूट्रिएंट्स, तुम्हारे क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पैदा कर सकते हैं. तो वीड्स तुम्हारे ट्रांसप्लांटेड राइस में कम आते हैं. वेयरएज डायरेक्ट सीडेड राइस जो है, डायरेक्टली सोइंग किया है जहां तुमने गेहूं की तरह, वहां पर तुमको वीड का प्रॉब्लम ज्यादा आता है. ओके, सो ट्रांसप्लांटेड राइस, डायरेक्ट सीडेड राइस, लोलैंड राइस जहां पर सीजनल फ्लडिंग होता है अगर वहां पर कल्टिवेट कर रहे हो, एंड पहाड़ों पे या फिर हाई जहां पर अल्टीट्यूड है वहां पर कर रहे हो तो अपलैंड राइस बोलते हैं. नाउ राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन, जहां पर पानी ज्यादा अवेलेबल है ऑब्वियसली, बिकॉज राइस कल्टिवेशन में स्टैंडिंग वाटर कंडीशन तुम क्रिएट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए उसको. सो लॉट ऑफ इरिगेशन वाटर इज नीडेड. तो डेल्टा रीजन्स में जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, और इन द प्लेन्स पंप करके पानी को अंडरग्राउंड वाटर यूज करके क्रॉप को ग्रो किया जाता है. So development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in the areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. So तुम्हारे ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला बेल्ट है, यहाँ पर राइस कल्टिवेशन इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि उसको पानी का रिक्वायरमेंट है एंड यील्ड पर एकड़ इज हाई. सो फार्मर्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दोज क्रॉप्स विच गिव्स मोर यील्ड. फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल इंक्रीज करते गए. सो जहां पर यील्ड ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, एंड दे डिपेंड ऑन अंडरग्राउंड वाटर. कैनाल सिस्टम तो अच्छे से बनाया, स्पेशली इन दिस एरिया. ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेल्ट है तुम्हारा, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट, कैनाल सिस्टम वो सब बनाया, पर अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुआ. तो ये एरिया में सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं. सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम क्या होता है एग्रीकल्चर में? फर्स्ट जनरेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्टार्टिंग में भूखमरी थी, ड्रॉट्स थे, इनफ फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, देयर वाज नॉट इनफ ग्रेन टू फीड आवर ओन पीपल, तो प्रोडक्शन ही नहीं था, ड्रॉट्स, इरिगेशन ये सब कुछ भी नहीं था, तो इनपुट्स की कमी थी. ये तो फर्स्ट जनरेशन प्रॉब्लम्स था एग्रीकल्चर का. फिर क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, सब हमने इरिगेशन बनाया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बड़े बड़े डैम्स, ये सब इरिगेशन का ये सब बना दिया. फर्टिलाइजर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमने इंक्रीज किया. तो 70s 80s आते आते क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन प्रॉब्लम खत्म हो गया, यानी वी कुड प्रोड्यूस इनफ ग्रेन टू फीड आवर पीपल. तो पहला फर्स्ट जनरेशन का प्रॉब्लम तो खत्म हो गया. फर्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ इनफ फूड, लैक ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, इनपुट यूज नहीं था, क्या बोलते बैकवर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वो सब खत्म हो गए. फिर नए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए. क्या हुआ, अब सॉइल पोल्यूट होने लग गया, अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लग गया, तो इंसेक्ट रेसिस्टेंस, पेस्ट रेसिस्टेंस, पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट. सो क्या है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन द सॉइल, सॉइल का फर्टिलिटी कम होने लग गया, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो गया. ये सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम्स हो गए. जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन को सॉल्व किया, सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम शुरू हो गए. सो
ये एरिया जो है नाउ दिस इज फेसिंग द सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम्स, सॉइल पोल्यूट हो गया वहाँ पर, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हर्बिसाइड्स, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के हिसाब से तो सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये पूरा एरिया अभी, राइट। सो राइस हम लोग बात कर रहे थे, सो टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये प्रोडक्शन के हिसाब से लेटेस्ट है, लेटेस्ट डेटा है प्रोडक्शन के हिसाब से 2019-20 वाला है। सो फर्स्ट स्टेट राइस में, अब देखो सारे स्टेट तुमको अभी कितना कितना प्रोडक्शन करता है, बिकॉज ये इट वेरीज ईयर टू ईयर, हर साल बदलते रहता है, बारिश गिरा नहीं गिरा उसके हिसाब से, तो नंबर याद करके कोई फायदा नहीं है, जस्ट तुमको स्टेट याद रख लो कि कौन सा स्टेट प्रोडक्शन में फर्स्ट है। एटलीस्ट 3 स्टेट्स याद होने चाहिए। वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे, पंजाब सेकंड, उत्तर प्रदेश थर्ड, फोर्थ आंध्र प्रदेश, फिफ्थ बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना। तो ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, तो पहले 3 तो एटलीस्ट तुमको पता होने चाहिए कौन से। सो इफ यू सी द मैप, ये भी एनसीईआरटी का ही मैप है। सो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से हैं? सो ऑल दीज एरियाज, ये वाला पूरा एरिया मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। सो कोस्टल जो भी तुम्हारा डेल्टा रीजन्स हैं और कोस्टल बेल्ट है, ये पूरा पार्ट्स ऑफ केरला, गोवा, ये पूरा राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, प्राइमरी राइस प्रोड्यूसिंग एरिया मेजर। फिर वी हैव माइनर एरियाज, ये पूरा माइनर एरिया आता है, पंजाब, ये माइनर एरियाज हैं राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज। ओके, सो नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया इज व्हीट। तो राइस एंड व्हीट, दीज आर द स्टेपल क्रॉप्स। तो व्हीट में अगर आओगे तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो व्हीट पे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान, यूपी, पंजाब, ये पूरा एरिया में व्हीट ज्यादा कंज्यूम होता है। इन 2020 व्हीट प्रोडक्शन हार्वेस्टेड इन जून is estimated at a high level of 107.6 million tons. So 107.6 million tons yield record किया गया है। This rabi crop requires a cool growing season. तो हम लोग अक्टूबर एंड में सो करते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो मंथ है, जनवरी सेकेंड वीक से फरवरी फर्स्ट वीक का जो टेम्परेचर्स है, दे शुड बी लो फॉर फ्लावरिंग एंड रिप्रोडक्शन। अगर उस टाइम में जनवरी सेकेंड वीक से फरवरी फर्स्ट वीक के बीच में अगर टेम्परेचर 1 डिग्री या 2 डिग्री भी इंक्रीज होता है तो व्हीट का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जो है तुम्हारे टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्रीज 12 डिग्रीज, वो नॉर्थ इंडिया में ही मिलेगा, साउथ में उतना टेम्परेचर नहीं मिलता, इसलिए व्हीट को तुम मध्य प्रदेश से नीचे ग्रो नहीं कर सकते। सो इट रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन at the time of ripening. It requires 50 to 75 centimeters of annual rainfall evenly distributed over the growing season. See, I'm not going deep क्योंकि wheat में बहुत सारे चीजें पढ़ा सकते हैं, उतना नहीं चाहिए तुमको, तुम एग्रीकल्चर का ऑप्शनल नहीं लिख रहे हो, दिस इज जस्ट फॉर प्रीलिम्स। सो फोकस मेनली ऑन एनसीईआरटी कंटेंट, एनसीईआरटी के बेसिस पे तुम कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि क्वेश्चन उधर से ही आता है, बहुत डीप में जाके नहीं पूछेगा, ठीक है। सो रबी सीजन का क्रॉप है व्हीट। देर आर 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, तो मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो ये प्रोडक्शन के हिसाब से टॉप स्टेट्स हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? सो यूपी नंबर 1 पे है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात ये बाद में आते हैं। सो यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, दीज आर द टॉप स्टेट्स। सो ये तुम्हारा व्हीट मेजर ग्रोइंग रीजन्स, ये कलर जो है दिस इज द मेजर ग्रोइंग रीजन, ये मेजर ग्रोइंग रीजन है। देन वी हैव माइनर रीजन्स, ये माइनर रीजन्स हैं, ओके, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओके, यहां पर भी थोड़ा सा। सो मेजर एंड माइनर रीजन्स। तो एटलीस्ट फॉर एवरी क्रॉप जस्ट रिमेंबर द टॉप 3 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के हिसाब से याद रख लो। सो नेक्स्ट सीरियल विच इज इंपॉर्टेंट इज मेज। तो मेज जो है, मक्का, पंजाब उस तरफ मक्का रोटी वो सब हम लोग भी खाते हैं, आई मीन ह्यूमंस कंज्यूम तो करते ही हैं, बट मेनली जो है सदर्न पार्ट में
दो इट इज कंज्यूम्ड एज ए कोर्स ग्रेन, बट मेज को ना जनरली फॉडर के लिए या फिर चिकन फीड के लिए ज्यादा यूज किया जाता है. ओके, सो इट इज ए क्रॉप विच इज यूज्ड एज फूड एंड फॉडर दोनों की तरह. ओके, सो फॉडर में क्या है, वी डोंट वेट टिल कॉप्स आर प्रोड्यूस. कॉप्स, उसका जो कॉप्स है, मक्का का भुट्टा है ना, उसके आने तक वेट नहीं करते हैं. पहले ही वेजिटेटिव स्टेट में उसको निकाल के तुम एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंसों को खिला सकते हो. इट इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. यानी ये टेम्परेचर रेंज कहीं पर भी इंडिया में वहां पर ग्रो कर सकते हो तुम. खरीफ क्रॉप इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो खरीफ सीजन में ग्रो हो रहा है. नो, तुम अक्टूबर नवंबर में भी प्लांट कर सकते हो मेज को, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर्स ये वाले मेंटेन होते हैं. क्रॉप्स आर डिवाइडेड based on the temperature requirement, photo period and thermo period, right? So उनका climatic requirements की वजह से उनको ग्रुप किया गया, उसके बाद seasons का नाम दिया. So they grow well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in rabi season also, क्योंकि उधर तुमको कुछ पार्ट्स में वो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट उसका पूरा होता है. साउथ में भी तुम रबी सीजन में भी ग्रो कर सकते हो मेज को. यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज हाई यील्डिंग वेराइटीज, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेज. सिर्फ मेज का ही नहीं, फॉर ऑल द वेराइटीज, फॉर ऑल द क्रॉप्स इट इज ट्रू. मेज प्रोडक्शन इन 2019-2020 was 28.6 million tons. तो 28.6 million tons is the latest data. Now major maize producing states अगर तुम देखते हो तो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड एमपी. सो अगर तुम प्रोडक्शन वाइज देखते हो तो दीज आर द टॉप स्टेट्स. आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार. इसका एक चीज बताया था तुमको, चिकन फीड मुर्गियों को खिलाने के लिए भी यूज होता है. इफ यू सी द एग प्रोडक्शन, अगर अंडों का प्रोडक्शन देखोगे तो टॉप में आंध्रा और कर्नाटका ही आते हैं. आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना यही आते हैं एग प्रोडक्शन में. तो मुर्गियों का जो अंडा का प्रोडक्शन है और जो उनका फीड का जो है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है ना. जहां पर मेज ज्यादा प्रोड्यूस होता है वही उसको मुर्गियों का भी वहीं पर ज्यादा प्रोडक्शन है, आई मीन अंडों का. सो दे आर मेनली यूज्ड एज चिकन फीड. बाकी ह्यूमन कंज्यूम तो करते हैं. मक्के की रोटी है, पंजाब में बहुत फेमस है मक्के की रोटी, सरसों का साग, वो दैट इज देयर. ह्यूमंस डेफिनेटली कंज्यूम इट, बट मेजॉरिटी जो जा रहा है अभी चिकन फीड की तरफ जा रहा है. सो दैट वॉज अबाउट मेन सीरियल्स. ये तो कोर्स ग्रेन में भी काउंट कर सकते हो तुम इसको, कोर्स ग्रेन में ही आता है बेसिकली. सो दैट वॉज अबाउट मेन सीरियल्स. सो we'll take a break here, and in the next video we'll discuss about coarse grain crops, pulses, oil seeds and cash crops. We'll discuss those in the next video. So thank you very much. Goodbye.